Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are here back with the part 3rd of the chapter Federalism. We have completed 2 parts of the same chapter till now, and I hope those 2 parts are completely clear to all of you. In first part we have discussed the meaning of term federalism and on which basis we are considering that any country is having federal structure, that we have discussed. And last class we have understood the scenario of the world, basically with examples of Nigeria and West Indies. I hope all those 2 parts were clear to all of you. And along with that we have also started Indian context of federalism. We have also understood that the constitution makers of our country, they were very much sure about this thing that if we will not be distributing the power, it will create the problem. Because it was also necessary to provide some autonomy to the states. But along with that, it was also necessary to put a check over the powers of both on the level, central level also and state level also. And why it was required? It was required because if we will not create this, if we will not be having a proper division of the power, then there will be problems definitely. Right? And just for that thing, just for the solution of that problem, we have clearly divided the powers on center and state level. And I have told you in our country there is no any example like subordinate. In our country, the center and state work like center is the body and states are the body parts. In that manner, you can say system theory. You can say that whole of the system work as a body. Human body, you can take the example. Right? In today's class, what we are going to study, we will discuss that Indian constitution is having some kind of features on which basis we are considering that India is having federalism, right? And on which articles are describing the same thing regarding Indian context, right? So let us have a look over the constitutional provisions of the country which are ensuring us regarding the federalism. Right? Do you know, for example, that the Constitution of India does not even mention the word federation? I have told you this thing in the starting of the chapter only, that there is no any word in our country constitution just like federation. हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपको फेडरेशन वर्ड, फेडरलिज्म वर्ड नहीं मेंशन मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी कंट्री में जस्ट एक वर्ड मेंशन है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. There is no any single word like federation. This is how Indian Constitution describes India. और हमारा Constitution में describe कैसे करता है? कैसे? India, Article 1 हमारी कंट्री का क्या बोलता है? Article 1, India, that is भारत, shall be a union of states. मतलब states की एक यूनियन होगी. फेडरलिज्म वर्ड नहीं लिखा, फेडरेशन वर्ड नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states. राइट? उसके अलावा द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule. और इसीलिए जो हमारे स्टेट्स होंगे, टेरिटरीज होंगी, इसलिए स्पेसिफाइड है हमारी फर्स्ट शेड्यूल में. आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ऑल दो वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन, बट इवन देन 7th शेड्यूल ऑफ द कंट्री देयर इज क्लियरली मेंशन. देयर आर 3 लिस्ट: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. Along with that, treasury powers are also there. तो यहाँ पे क्या चीजें मेंशन है कि हमारी कंट्री में क्या होंगे? स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, उनको स्पेसिफाई कर दिया फर्स्ट शेड्यूल में. राइट? अब देखो हमारी कंट्री में कैसे पावर डिवाइडेड है. लेट अस हैव अ लुक ओवर इट. हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, हम क्या रीड करने वाले हैं? हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि इंडिया में फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है विदाउट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ पावर्स. अब देखो, देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फॉर द एंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन से, एंड वन फॉर ईच यूनिट इज कॉल्ड स्टेट और द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब क्या? हमारी कंट्री में हम लोगों ने पावर्स का डिवीजन किया हुआ है. कैसे? एक सेंट्रल लेवल पे जो पूरी की पूरी एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सेकंड, जहां हम लोगों ने पावर को डिवाइड किया है जो उसके यूनिट्स के बीच में, एक तो देखो क्या हो गया? एंटायर पार्ट हो गया, है ना, एंटायर नेशन, जिसको आपने क्या बोल दिया? यूनियन. और एक क्या हो गया? उसके सब पार्ट्स हो गए, है ना, उसके पार्ट्स एक टाइप से, तो मतलब उसके यूनिट्स हो गई.
तो वो क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट दोनों लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है एंड क्लियरली आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एक्टिविटी, और दोनों का एरिया भी डिफाइन है क्लियरली। मतलब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी डिफाइन है और उनका एरिया ऑफ एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो डिफाइन। मतलब हमने डिफाइन कर दिया कि यहां तक हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी, यहां तक हमारी कंट्री की स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी, और उनका एरिया भी डिफाइन कर दिया, राइट। उसके अलावा इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट विच पावर कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन एंड विच अंडर द स्टेट्स, दिस कैन बी रिजॉल्व बाय द जुडिशरी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और ये जो डिवीजन हम लोगों ने किया है ना, वी आर वेरी हार्ड ऑन इट, वी आर जस्ट, यू कैन से वी आर जस्ट स्टिक ऑन इट, राइट। क्यों क्यों है ऐसा? अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किए हुए। कैसे प्रोविजंस किए हुए कि हम लोगों ने नहीं सिर्फ पावर को डिवाइड नहीं किया, बल्कि अगर उन पावर्स के रिगार्डिंग कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो उसके लिए भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए हैं। और वो क्यों किए हैं, वो कैसे किए हैं कि हमारी जुडिशरी है उसके लिए। हमने पढ़ा ना हमारी कंट्री में, आप लोगों ने, आई थिंक अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल दीज चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड इन द डिटेल एंड इफ यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन सी द वीडियोस अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, राइट। अब यहां पर भी आपको क्या मेंशन है कि हमारी कंट्री में एक तो हम लोगों ने पावर्स को क्लियरली डिवाइड कर दिया, बट अगर सोच के चलो कहीं पर कोई टसल क्रिएट भी हो जाता है, राइट। So there also we are having our judiciary. On which basis? So that we can resolve the conflicts. समझ आया? और वो क्यों है, ताकि हमें conflicts को resolve करना है। The Constitution clearly demarcates, demarcation मतलब clearly division करता है, किसका, subjects का, which are under the exclusive domain of union and those under the states। मतलब clearly आपको पता है कि ये आपके क्राइटेरिया में आता है, ये स्टेट ये वर्क कर सकता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे पुलिस का सब्जेक्ट हो गया, है ना, जैसे हमारी कंट्री में आप देखो नेशनल लेवल पे जैसे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि हमारी कंट्री की करेंसी हो गई, हमारी कंट्री की बैंकिंग हो गई, तो हम लोगों ने क्लियरली डिफाइन कर लिया इसके ऊपर लॉ जो भी बनेगा दैट विल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, राइट। इन द सिमिलर मैनर हम लोगों ने जैसे एग्रीकल्चर है, पुलिस जैसे सब्जेक्ट है, इनको कहां कैटेगराइज कर दिया, इनको स्टेट लिस्ट में कैटेगराइज कर दिया कि इनके ऊपर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। समझ आया? तो इट मीन्स हम लोगों ने क्यों किया ऐसा, हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई प्रॉब्लम्स अराइज ही ना हो, राइट। समझ आया? अब देखो यहां पे वही शो होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, सब्जेक्ट्स को डिमार्केट करता है, राइट। अब देखो विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन एंड दोज अंडर द स्टेट्स, कि कौन सी पावर सेंटर की है और कौन सी स्टेट की है, राइट। अब देखो उसके बाद स्टडी द चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज केयरफुली। अब आपको क्या करना है, स्टडी करना है। यहां तक आपको आई थिंक समझ आया, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमारी कंट्री में डिवीजन कैसे हुआ है। हमारी कंट्री में डिवीजन ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने कैसे किया है, हम लोगों ने ऐसे डिवीजन किया है कि हमारी कंट्री में डिवीजन इतना क्लियर है कि हम लोगों ने इवन ये भी बताया कि अगर डिस्प्यूट्स होगा तो उनको कैसे हम लोग रिजोल्व करेंगे, राइट। ये क्या बताता है, इट शोज हाउ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, कैसे डिवाइड होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर इज दैट इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। The states have immense responsibilities but very meager revenue sources। अब यहां पे भी क्या है, हम लोगों ने क्या कर दिया हमारी कंट्री में कि जो स्टेट्स हैं उनको हमने पावर एक टाइप से कम दी, एक टाइप से। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो सेंटर है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं हमारे स्टेट्स फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारी कंट्री में पावर्स को हमने क्लियरली डिवाइड तो कर दिया, बट इवन देन हम लोग क्या करते हैं, इवन देन वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रोविजन कि हमारी कंट्री में सेंटर ज्यादा पावरफुल है। और हम लोगों ने क्यों किया, बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट दैट फेडरल विच इज हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंटर। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स को बड़े अच्छे से पता था, क्योंकि वी आर हैविंग ह्यूज डाइवर्सिटी and if we are not doing this kind of strict provision in the constitution, we will never be able to deal with the diversity of the country, because on each and every basis we are having huge diversity, right? I hope यहां तक clear है आपको। अब देखो इसके बाद
Let us have a look what the girl is saying to you. I feel that states would have very little money of their own. How can they manage their affairs? It is like some families where the money is with the husband and the wife has to manage the household. हालांकि कुछ सिचुएशंस होती हैं, बट इवन स्टेट्स के पास भी हमारी कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होता है कि उस रेशियो में उनके पास वो चीजें जाएंगी. बट इवन देन एज आई टोल्ड यू, वो असिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं हमारे सेंटर के, फॉर स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल टास्क, कि उनको मनी ग्रांट कौन करवाता है? सेंटर ही ग्रांट करता है उनको मनी. इसलिए देखो आप लोगों ने कई बार डिस्प्यूट सुने होंगे, क्योंकि उस स्टेट में ना एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो वहां पे मनी कम ग्रांट हुई. आप लोगों ने वर्डिंग अपने पेरेंट्स से सुनी होगी कभी कि वहां पे उसी गवर्नमेंट, उसी पार्टी की गवर्नमेंट है जो सेंटर में, इसलिए वहां पे अच्छी खासी क्या होगी? मनी डोनेट हो गई है. मनी डोनेट नहीं बल्कि क्या होगी? एक टाइप से मनी ग्रांट दे दी गई है. राइट? आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है. इट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम लोगों ने पावर्स का क्लियरली डिमार्केशन किया है, क्लियरली डिवीजन किया है. एंड व्हाई वी हैव डन इट? वी हैव डन इट सो दैट देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. राइट? और अगर कंफ्लिक्ट होता भी है, वी आर हैविंग सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो. फॉर दैट वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एंड हाउ वी आर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट ऑलरेडी यू आर aware about that, about the similar thing. You have already understood all the things in the previous chapter. समझ आया? तो मतलब हम लोगों ने फेडरलिज्म, although I am repeating it again, although it is not mentioned in the constitution of the country, but even then it in practice, it is in practice, we are utilizing it, we are using it on each and every example. You have seen article 1 also, right? अब देखो आपसे बोला गया check your progress. Do you think that there is a need for mentioning residuary power separately? Why? अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. As I told you, there are 3 lists. समझ आया? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. बट उसके बाद भी तो कुछ पावर्स बच जाएंगी ना. देखो सेंट्रल लिस्ट कौन सी? जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है. स्टेट लिस्ट कौन सी? जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल पुलिस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस. राइट? तो क्यों? क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट है पुलिस. आप लोगों ने उसके बाद कंकरेंट लिस्ट सुना होगा, जैसे एजुकेशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बना सकती है और स्टेट भी पॉलिसीज बना सकता है. आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रल लेवल के साथ साथ हमारे पास क्या होती है? हमारे पास स्टेट की पब्लिश्ड बुक भी होती है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक्स ना बड़ी अच्छी हैं. सुना होगा आपने कभी. वाई? बिकॉज ये सब्जेक्ट कैसा है? इट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो जिस पर दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं. बट ये कौन सी पावर आ गई भाई? अब देखो रेजिडरी पावर्स. अब ये कौन सी पावर्स आ गई? क्योंकि ये तो हम लोगों ने मेंशन की ही नहीं थी. तो रेजिडरी पावर्स बेसिकली कौन सी पावर्स होती हैं? जो ना सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है. समझ आया? इट मींस अब देखो ये भी कुछ ना कुछ पावर्स होंगी ना. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि क्लियरली डिवीजन हो जाए. राइट? अब उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने डिवीजन कर लिया और अब कंफ्यूजन अराइज नहीं होना चाहिए. राइट? तो अब देखो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? ऐसा हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे थे? क्लियर डिमार्केशन ना. राइट? अब यहां पे इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी, और इस पे दोनों की दोनों वहां से बनाएंगी. मतलब दोनों की दोनों, सेंटर भी स्टेट भी कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाएंगी. अब देखो रेजिडरी पावर जो कंसेप्ट है ना, हम लोगों ने कनाडा से अडॉप्ट किया है. ठीक है? अब इसमें हम लोगों ने कौन से सब्जेक्ट्स डाले हैं? इसमें हम लोगों ने वो सब्जेक्ट्स डाले जो ना सेंटर में आए, ना स्टेट में आए, ना कंकरेंट में आए. अब इन पर देखो, और इन पर राइट किसका होता है? आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने ना इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया होगा, रीड किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इट्स अ बोरोइंग बैक. एंड व्हाई डू वी कॉल इट बोरोइंग बैक? क्यों बोलते हैं इसको बोरोइंग बैक? क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे जो हमने डायरेक्टली दूसरी कंट्री से अडॉप्ट कर लिए. तो ये वाला सिस्टम भी, जो ये वाला सिस्टम आपका, ये वही है रेजिडरी पावर्स. इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया? जो पावर्स किसी के पास नहीं है वो हम लोगों ने किसके पास दे दी? सेंटर के पास दे दी. और क्यों? अब देखो क्या, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये जरूरी है कि हम मेंशन करें रेजिडरी पावर्स को अलग से? तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में भाई क्या है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी तो इट मींस क्या होगी? प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. और अगर प्रॉब्लम्स अराइज होंगी तो किसके पास अथॉरिटी होगी उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने की? और ताकि वो एक कंफ्यूजन हो ही ना. राइट? इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? रेजिडरी पावर सारी की सारी सेंटर को दे दी. बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू आवर फेडरलिज्म इज टिल्टेड टुवर्ड सेंटर. रेजिडरी पावर्स इज द एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग डायरेक्टली.
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वो सारी की सारी पावर किसको दे दी, सेंटर को दे दी। समझा? देखो जैसे मान लो साइबर सिक्योरिटी और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम पे बने ही नहीं थे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना, जैसे इंटरनेट हो गया, जैसे प्राइवेसी हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट्स उस टाइम पे नहीं थे ना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, तो अब इन पे लॉ कौन बनाएगा? इसीलिए जो अब नए नए सब्जेक्ट्स अमर्ज होते जा रहे हैं ना, हमने बेसिकली उनको कहाँ पुट कर दिया, हम लोग उनको पुट कर दिया इन द रेजिडेंसी पावर्स। और रेजिडेंसी पावर्स, इनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अब इनका क्लियरली एक टाइप से सेपरेशन जरूरी है, इनको मेंशन करना जरूरी है, वो इसीलिए ताकि हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम अडॉप्ट हो जिसके बाद हम क्या कर सके, जिसके बाद हम क्लियरली शो कर सके। क्योंकि देखो क्लियर डिमार्केशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, एक तो वर्क की प्रोफिशिएंसी के लिए और एक दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए। क्योंकि देखो अगर मान लिया क्लियरली हम लोगों ने पावर्स को डिवाइड किया है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सपोज आई गिव यू एग्जांपल, एवरी टाइम आपकी क्लास में कई सारे मॉनिटर्स बना दिए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से, लैंग्वेज का अलग से, क्लास रिप्रेजेंटेटिव अलग से, डिसिप्लिन अलग से, यूनिफॉर्म अलग से, तो देखो वो पर्टिकुलर बच्चा उसी चीज के रिगार्डिंग फोकस होगा ना। मान लिया कोई यूनिफॉर्म मॉनिटर है, देन एवरीवन ही और शी इज गोइंग टू चेक कि ही और शी इज इन प्रॉपर यूनिफॉर्म और नॉट। That person who is your electricity monitor, while you will be moving out of the class, he or she will be checking all the fans are switched off or not, ACs are switched off or not, lights are switched off or not. तो इससे क्या हो जाता है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर हो जाती है, राइट? और दूसरा क्या हो जाता है कि इसकी वजह से पावर्स में कन्फ्लिक्ट्स राइज नहीं होते। क्योंकि अगर क्लियरली डिमार्केशन हो गया पावर्स का तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि हर कोई सिर्फ अपने एरिया का काम करेगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं। आई होप ये समझ आया आपको। दूसरा, व्हाई डू द स्टेट फील डिससेटिस्फाइड अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स? अब स्टेट क्यों डिससेटिस्फाइड फील करते हैं? बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में देखते हो तो क्या है, आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, 99 और 100 के अराउंड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप स्टेट लिस्ट में देखोगे तो 66 और 67 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ऐसा डिवीजन किया है कि जिसकी वजह से हम फील कर सकें, क्या फील कर सके, कि हमारा सेंटर ज्यादा पावरफुल है। और स्टेट ऑफ कोर्स इससे क्या फील करते हैं, डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। क्योंकि जब सेंटर इतना ज्यादा पावरफुल है तो फॉर ईच एंड एवरी फाइनेंशियल टास्क दे विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द सेंटर ओनली ना। समझ आया? फाइन। अब देखो इसीलिए हमारे जो स्टेट्स हैं वो डिससेटिस्फाई फील करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हर छोटे से छोटे काम के लिए उन लोगों को क्या फील करना पड़ रहा है, उन लोगों को स्टेट सेंटर के सामने एक टाइप से कहीं ना कहीं कुछ मांगना पड़ रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस के रिगार्डिंग। ये वही देखो आपको जहां एग्जांपल दिया गया है वाइफ और हस्बैंड का, है ना। तो हमें क्या लग रहा है कि सेंटर क्या कर रहा है, एक ऐसी रिच हस्बैंड की तरह वर्क कर रहा है, और वाइफ एक सिंपल क्या है, हाउस वाइफ है, जिनको बार बार क्या करना पड़ रहा है, बेग करना पड़ रहा है, एक टाइप से मांगना पड़ रहा है अपने हस्बैंड से। The same thing is happening here also. That's why the states feel dissatisfied toward the division of the powers in our country. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इस लिस्ट को आप बड़े अच्छे से समझोगे। इस लिस्ट में आपको क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड एज आई टोल्ड यू 7 शेड्यूल में डिवीजन है लिस्ट का। तो अब यहाँ पे आपको वही बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स को किस कैटेगरी में हम लोगों ने पुट किया है। तो अब देखो सबसे पहले यूनियन लिस्ट। तो ऑफ कोर्स सबको पता है, आपको पता चल गया है कि दो सब्जेक्ट्स विच आर कमिंग अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे किस में आएंगे, यूनियन लिस्ट में आएंगे। जैसे कि डिफेंस हो गया, है ना। देखो सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, जो हमारी कंट्री की डिफेंस पॉलिसी बनेगी, एटॉमिक एनर्जी होगी, फॉरेन अफेयर, क्योंकि देखो इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता, स्टेट्स का, है ना। डिफेंस तो पूरी कंट्री के लिए बनेगी एक टाइप से, समझ आया। एटॉमिक एनर्जी वो पूरी कंट्री के लिए होगी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, राइट। उसके अलावा एयरवेज हो गया, पोर्ट्स क्या, जहां से हम लोग क्या करते हैं, शिप्स में सामान चढ़ाते उतारते, पोर्ट्स, वो वाली चीजें, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सारी की सारी चीजें किसकी हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनियन लिस्ट। इट मींस क्या हो गया, इन पर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब देखो कैसे, यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स। अब देखो इनको यूनियन लिस्ट क्यों बोला गया है, जस्ट फॉर दिस थिंग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले के पास ये पावर है कि वो इन सारे गिवन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। फाइन। उसके अलावा अब यहां पे है हमारी स्टेट लिस्ट।
अब स्टेट लिस्ट ऑफ कोर्स विद द नेम इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि स्टेट लिस्ट कौन सी, जिसमें वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर. अब देखो एग्रीकल्चर आप लोग कैसे याद रखोगे, आप लोगों ने सभी ने फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बड़े अच्छे से सुना होगा. यू मस्ट हैव लिसन, राइट? आप लोगों ने सुना होगा ना. अब देखो जब आप लोगों ने सुना होगा कि फार्मर लॉ वर प्रोटेस्टेड इन अ ह्यूज पार्ट ऑफ द कंट्री, क्यों फील किया आप लोगों ने? अब देखो उसके लिए ना कई सारी डिमांड्स थी, कई सारी रीजंस थी कि लोगों ने इसको ना सेपरेट वे से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. लेकिन एक जो सबसे फॉरमोस्ट रीजन था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन था उसका, वो ये था. क्यों? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये क्यों था? ये रीजन ये था क्योंकि जो एग्रीकल्चर है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, राइट? बट फार्मर्स लॉ दे वर डायरेक्टली पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. तो ये तो क्या हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टाइप से इंटरफेयर हो गया इन द एरिया ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और इसीलिए उसको लीगली क्रिटिसाइज और लीगली चैलेंज किया गया. एंड दैट कैन बी द फॉरमोस्ट रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फार्मर्स लॉ रिपील करने पड़े. गॉट द पॉइंट? अब उसके अलावा जो हमारी पुलिस है, आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस. क्यों? क्योंकि इट्स द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस ओनली, राइट? प्रिजन जो जेल होती है हमारी, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि देखो अलग अलग स्टेट्स में ना लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ कुछ चीजें अलग अलग हो सकती हैं. तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट गवर्नमेंट कि वो क्या कैसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं. पब्लिक हेल्थ ऑफ कोर्स, क्योंकि अब सेंटर की हेल्थ पॉलिसी ऑल दो बन सकती है, बट इवन देन स्टेट क्योंकि मोर क्लोजर टुवर्ड्स द पीपल, इसलिए क्या है पब्लिक हेल्थ. लैंड, लिकर ऑल्सो, राइट? क्योंकि देखो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उस स्टेट में ना शराब पे बंदी लग गई है. तो वाई इज इट सो? क्योंकि जो लीकर है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. ट्रेड एंड कॉमर्स, देखो अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ना, अब याद रखना आप लोग, अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो वो किसके, देखो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रल लिस्ट. बट अगर ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री हो रहा है, वो किसके अंडर होगा? स्टेट लिस्ट के अंडर. लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग वो सारी की सारी चीजें. स्टेट पब्लिक सर्विस, आप लोगों ने जैसे सुना होगा HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? सो नॉर्मली ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, अब यहां पे ओनली द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द लॉज ओवर दीज गिवन सब्जेक्ट्स, राइट? समझ आया? अब थर्ड लिस्ट आपकी दैट इज कंकरेंट लिस्ट. अब दोनों को कंबाइन कर दो जिस पर दोनों की दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाएंगी. तो सबसे पहले एजुकेशन, आप लोगों ने सुना होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बुक्स होती हैं अलग से हमारे स्टेट्स की भी. तो एजुकेशन हो गया. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर देन एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वो भी किसका है? कंकरेंट लिस्ट का है ना? उसके अलावा फॉरेस्ट भी, ट्रेड भी. ट्रेड अब देखो कहाँ, जो आसपास के एरियाज में हो रहा है. देखो ट्रेड में हम लोगों ने यहां पढ़ लिया कि ये क्या बना रही है, फॉरेन ट्रेड है. ये क्या है, जो हमारा विद इन द कंट्री हो रहा है. तो इट मींस ट्रेड किस टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा? ट्रेड आपका उस कैटेगरी में होगा कि दोनों की दोनों लॉ बनाएंगी, राइट? ट्रेड यूनियंस, उसके अलावा सॉरी जो ट्रेड यूनियंस हो गया आपकी, ट्रेड यूनियन जो ट्रेड से रिलेटेड आपकी यूनियंस बन जाती है ना, एसोसिएशंस बन जाती हैं उनके ऊपर. उसके अलावा उसके बाद अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन, मतलब सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, और ये सारी की सारी चीजें. अडल्ट्रेशन की कितनी एज आपकी अडल्ट के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए. अडॉप्शन एंड सक्सेशन, अडॉप्ट करने का राइट, मतलब चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं ना, और सक्सेशन की कौन आपकी नेक्स्ट वसीयत आपकी गेन करेगा, वो सारी की सारी चीजें. तो ये सारी की सारी चीजों के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है? बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स. अब ये क्या है, अब इस पर दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बनाएंगी, यूनियन ऑल्सो एंड स्टेट ऑल्सो. अब जो जिसके ऊपर इश्यू था वो क्या है? रेजिडरी पावर्स. अब ये कौन सी आ गई? इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट. जैसे कि आपका आ गया साइबर लॉज. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सारी की सारी चीजें मेंशन नहीं थी ना, कुछ चीजें नई नई भी हमारी कंट्री में इजाद होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं. तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट थिंग. सो यूनियन लेजिस्लेचर अलोन, अब इसको याद रखना, हम लोगों ने जो जितनी भी रेजिडरी पावर्स नए नए सब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनकी अथॉरिटी हम लोगों ने किसको दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलोंग हैविंग द अथॉरिटी टू मेक लॉ, टू लेजिस्लेट ओवर दीज काइंड ऑफ मैटर्स एंड सब्जेक्ट्स. आई होप यहां तक आपको कंप्लीटली क्लियर है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं जो उसको दिखाते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग अडॉप्ट किए हुए. I hope everything is related to federal structure of Indian Constitution is clear to all of you. But if you are having doubts, you can ask your doubts and comments. You can ask your doubts and question in comment section.
Okay, if you think that video is useful for you, kindly like the video and please share it with your friends also, and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.